Assalamu alaikum and welcome to another episode of AI GeoNavigators podcast series. I'm your host Mansoor Adil and today we are going to talk about climate change and its impacts. Pakistan is at the fourth line of global climate crisis. Despite contributing less than 1% of greenhouse gas emissions, Pakistan is facing severe flooding, droughts and heat waves. तो इन सब पे बात करने के लिए आज हमने एक बहुत ही ख़ास मेहमान को बुलाया है जिन्होंने तकरीबन 5 साल क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़ के ऊपर काम किया है. सो आई एम हॉनर्ड टू वेलकम मिस कुरतुलैन चीमा. करंटली शी इज़ वर्किंग एज डिप्टी डायरेक्टर SDGs and International Engagements at Pinnacle PR in Lobby. So Miss Kuratulain, welcome to the show. Thank you, Mansoor, for having me today on this wonderful podcast series. And I'm looking forward to having a very wonderful conversation here. So before diving into the climate change and its policies, I would like you to please tell our viewers about your academic and professional experiences. Yeah, I did my post-graduation in environmental sciences from NUST back in 2023. And I have been working in the field of climate change and policy making from around 5 years now. And I have worked in the SDG 7 for the clean and affordable energy. I have also worked in the for the SDG 9 for industrial innovation and SDG 13 for the climate actions. So my major work was around stakeholder engagement and policy recommendations and innovative research that the ideas that or models that have been in place in other countries, the ideas that we can replicate in Pakistan as well. So yes, that's my motto onward as well. Climate change is no longer a distinct phenomenon. It's here, it's real and it's impacting all around the globe. तो अगर हम बलूचिस्तान में फ्लड्स की बात करते हैं या पंजाब में हम हीट वेव्स की बात करते हैं या फिर GB रीजन में हम ग्लोफ की बात करते हैं तो ये सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से हो गए. तो ये ना सिर्फ इन्वायरमेंट का मसला है बट इसकी वजह से फूड सिक्योरिटी का मसला आ रहा है, इसकी वजह से माइग्रेशन के इश्यूज आते हैं और अल्टीमेटली एक इकनॉमिक कोलैप्स जो है ना एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से पैदा हो रही है. तो इन सब को कैटर करने के लिए पाकिस्तान ने ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ बनाई है या इंटरनेशनली कितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की मेडिटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं? So that is very wonderful question actually for the sources that are actually driving the climate change. And we have industrial emissions, we have transport emissions, we have emissions from the power sector that are major contributor towards the emissions. And then there is a stubble burning, another thing, Pakistan being an agrarian country, and we are surrounded by the agrarian countries as well. So these are the major contributors that are emitting greenhouse gases emissions in the atmosphere and that are driving a force for the global warming. If we talk about at national level, but internationally, if we look at the global north, where these activities has been in place from years now, NASA की एक world observatory system है, उनकी reports के according, उनके analysis के according, जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है that is around 1.1 degree Celsius raised from the 1800s. तो ये इंक्रीज़ जो है ये पर्टिकुलरली हमारे इंडस्ट्रियल एरा के बाद जो है वो स्टार्ट हुआ है. तो ग्लोबल नॉर्थ में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसकी वजह से भी ग्लोबल साउथ को ये इम्पैक्ट फेस करने पड़ते हैं. जितने भी आपने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बात की है, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से जो इम्पैक्ट्स आ रही है हमारी इकोनॉमी पे, लॉस एंड डैमेज हो रहा है, डेफिनेटली इनको कैटर करने के लिए वी शुड हैव सम स्मार्ट एक्शंस इन प्लेस, जिनको इसके लिए वी हैव टू प्रोंग्ड अप्रोच. वी शुड अडॉप्ट दोज अडेप्टेशन मेजर्स एंड लिटिगेशन मेजर्स. मिटिगेशन मेजर्स आर दी इन हाउस के हम पॉइंट सोर्सेज से ही एमिशन को कंट्रोल करें सो दैट एट द फर्स्ट पॉइंट एमिशंस एटमॉस्फेयर में जाए ही नहीं. देन एट द सेकेंड प्लेस अडेप्टेशन कम्स इन, जहाँ पे हम
इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से जो लॉस इन डैमेज होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज़ here in Pakistan and internationally who are working on it. UNFCCC is working very much on the climate change and adaptation and mitigation. And Pakistan, I guess you are familiar with the Paris Agreement. Pakistan is also signatory to that. So, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं फोरकास्टिंग की, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट कंट्रीज़ की अपनी नेशनल रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो आर वर्किंग ऑन दी फोरकास्टिंग. पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा NDMA है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके अलावा हमारी प्रोविंशियल बॉडीज़ हैं, BDMAs हैं. तो ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं ये एक्चुअली इस चीज़ को लुक आफ्टर कर ली होती हैं. मैंने थोड़ा सा काम किया है पावर सेक्टर पे भी. पावर सेक्टर पे इनिशियली अगर हम देखें तो दैट वाज मोस्टली रिलाइंग ऑन दी फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट जनरेशन, जिसमें कोल के पावर प्लांट्स हमारे CFAC के अंडर काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड हुए. इसके अलावा अगर हम मोबिलिटी सेक्टर में देखें तो हमारी आइस व्हीकल्स जो हैं वो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स हैं. हमारे हैवी जो व्हीकल्स हैं वो भी मोस्टली आइस व्हीकल्स हैं. तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है and EDB ने they are working towards the electric vehicles, particularly 2 wheelers and 3 wheelers. और उसके बाद इस चीज़ को एक्सपीडाइट करने के लिए बहुत सी फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ जो हैं वो बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट कि हम इस चीज़ को एक्सपीडाइट कर सकें. प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इंडिजिनस प्रोडक्शन नहीं होती. वी मोस्टली रिलाई ऑन दी इम्पोर्ट. हम चाइना से इंपोर्ट करें या दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करें. तो व्हाट वी नीड टू डू, हम जब क्लाइमेट स्मार्ट एक्शंस की बात करते हैं तो हमें इंडिजिनस प्रोडक्शन की ज़रूरत है सो दैट कि हमारे पास इतनी स्किल्ड लेबर है, हमारे पास इतने टेक्निकल और स्मार्ट ब्रेन्स हैं यंगस्टर्स, वी शुड यूटिलाइज दैम. और हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ओपन करने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो यहाँ पे आके अपना बिजनेस स्टार्ट करें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान के अंदर. पर हमारे ब्रिलियंट ब्रेन्स जो हैं वो इंडिजिनसली प्रोडक्शन करें, मैन्युफैक्चरिंग करें और हमारी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएँ. तो आई गेस वी नीड टू वर्क अ लॉट ऑन दीज एरियाज. जब हम मिटिगेशन की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, डेफिनेटली जब जनरली बात हो रही होती है तो क्लाइमेट चेंज को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता बिजनेस वर्ल्ड में. बट क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट आपने बिल्कुल राइटली मेंशन किए हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से, वो हमारी क्रॉप्स को डैमेज कर रहे हैं, वो हमारी इंडस्ट्रीज़ को डैमेज कर रहे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे हैं, हमारी लाइवलीहुड को डैमेज कर रहे हैं. तो उसकी वजह से डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है आपकी इकोनॉमी पे. अगर आप इसके नेक्सस को देखें तो डेफिनेटली यू विल नो कि हमें कितना स्मार्टली और स्ट्रेटेजिकली एक्ट करना पड़ेगा टू टैकल दीज इफेक्ट्स. So when we talk about frameworks, when we talk about policies, so yes, they are there. But how effective they are और कितनी ज़रूरी है इसके लिए लॉबिंग के जितने भी फ्रेमवर्क्स आपके हैं वो इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहे कि नहीं कर रहे? ओके, यू आर राइट कि हमारे पास बहुत सी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सी रेगुलेशंस हैं, बहुत से फ्रेमवर्क्स हैं जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रेगुलेटरी बॉडीज़ ने इन प्लेस हैं. बट द थिंग इज़ कि एग्जीक्यूशन उनकी उस तरह से नहीं होती बिकॉज बहुत से लोग जो हैं वो पॉलिसीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी नहीं करते. एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमारी सारी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो साइलोस में वर्क कर रहे हैं. लेट्स से कि अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में एक पॉलिसी बनाते हैं और वो पॉलिसी इंडस्ट्रियल सेक्टर पे होती है या पावर सेक्टर पे होती है या फिर मोबिलिटी सेक्टर पे होती है, अगर हम उनको साथ में एंगेज नहीं करेंगे तो वो हम एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते. और हम उस रेगुलेटरी बॉडी को एंगेज करते हैं. उसके बाद सेकंड थिंग आती है कि हम बिजनेसेस को एंगेज करें. लेट्स से कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्ट करना है पाकिस्तान के अंदर, तो हम लोगों को यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, हमें उनको एंगेज करना पड़ेगा. उसके अलावा हम लोगों को जो उनके कंज्यूमर्स हैं उनको इंगेज करना पड़ेगा, उनको अवेयर करना पड़ेगा कि वो आइस व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ क्यों शिफ्ट करें. ये अभी रिसेंटली कार्बन लेवी का भी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है
तो इस तरह की जो पेनल्टीज़ होती हैं वो भी इन चीज़ों को एक्सपीडाइट करने के लिए गवर्नमेंट चूज़ कर रही होती है। बट डेफिनेटली लॉबिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक सेंट्रल एक वन विंडो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है आपके थ्रू आउट सप्लाई चेन जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, इधर दे आर इन बिजनेसेस, इधर दे आर इन CSOs, इधर दे आर वर्किंग एज अ प्राइवेट in sector, or they are academicians, or they are even students, और गवर्नमेंट सेक्टर में है या इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ भी, तो वो लिंकेजेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। साइलोस पे वर्क करके वी कैन नॉट गेट बेटर रिजल्ट्स। व्हेन वी विल वर्क टुगेदर डेफिनेटली हम बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं, हम उसको एक्सपीडाइट भी कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली प्रोफेसर एहसन इकबाल की मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने एक उड़ान पाकिस्तान का विजन जो है वो दे आर फोकस्ड ऑन 5 E's, जिसमें एक्सपोर्ट जो है उसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा उनका एम्फेसिस है। एंड आई थिंक आपको आइडिया होगा कि यूरोपियन यूनियन जो है वो यूरोप बेस्ड जो भी हमारी एक्सपोर्ट्स होंगी उसके ऊपर वो एक टैक्स इम्पोज करें, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो 2026 से सारी इंडस्ट्रीज़ और सारी एक्सपोर्ट पे लागू होगा। तो अगर हम एक्सपोर्ट्स को फोकस करें तो हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी करने की ज़रूरत है, सो दैट कि हम जो इंडस्ट्रीज़ एक्सपोर्ट बेस्ड हैं हम उनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उनकी एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए वी शुड हेल्प देम। तो यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है, पर्टिकुलरली जो टेक्निकल सेक्टर्स हैं, वो रोल प्ले करता है। लेट्स से कि आप AIGO नेविगेटर्स की बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने एमिशन कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर्स बनाए हैं, तो आप इंडस्ट्रीज़ को गाइड कर सकते हैं सो दैट दे कैन कैलकुलेट देयर ओन एमिशंस फॉर स्कोप 1, स्कोप 2 एंड स्कोप 3, और काफ़ी ESG फ्रेमवर्क्स भी हैं। तो इस तरह से जो लिंकेजेस है इंडस्ट्री का और रेगुलेटरी बॉडीज़ का और प्राइवेट सेक्टर का और इवन एकेडेमिया का, क्योंकि बहुत से ब्रिलियंट ब्रेन्स जो हैं वो एकेडेमिया से ही निकल के इंडस्ट्री में आते हैं, और बहुत से आइडियाज़ जो हैं इनोवेटिव आइडियाज़ वो एकेडेमिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये लिंकेज जो है वो बहुत ज़रूरी है टू गेट बेटर रिजल्ट्स। हमने एकेडेमिया की बात की, हमने इंडस्ट्रीज़ की बात की, तो यूथ को हम कैसे भूल सकते हैं? एंड सिंस यू आर आल्सो एम्बेसडर ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशंस एट नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो आप क्या समझती है कि यूथ का क्या रोल हो सकता है क्लाइमेट एडवोकेसी में? डेफिनेटली यूथ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लाइमेट की एडवोकेसी की बात करें या किसी भी और फील्ड की बात करें, इन माय ओपिनियन यूथ जो है वो इनोवेटर्स हैं। इन माय ओपिनियन यूथ जो है वो डिजिटल मीडिया के दौर में ये ग्रोन अप हुए हैं, और यूथ जो है उनके अंदर अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है फॉर एनी चेंज। तो यूथ को जब हम अवेल करते हैं किसी भी इस तरह की इम्पैक्ट्स की वजह से, एंड यूथ इज़ ऑल्सो यूथ जो है वो इस चीज़ को खुद भी ऑब्जर्व कर रही है कि हमारे पास एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रहे हैं, हमारे मानसून पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, हमारे वेदर जो सीजन्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो यूथ जो है वो ऑलरेडी काफ़ी अवेयर है। They are not like from the climate advocates from all the fields, like even they are doctors or engineers, or they are from judiciary और किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं या किसी भी बैकग्राउंड से हैं। जब यूथ जो है वेल अवेयर होगी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स की वजह से, तो दे विल गो फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशंस, क्योंकि यूथ जो है वो अभी स्टेप इन कर रही है प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में, बिजनेसेस में। तो व्हेन दे विल बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द कॉजेज एंड सॉल्यूशंस, तो वो क्लाइमेट कॉन्शियस सॉल्यूशंस की तरफ जा सकते हैं। सेकेंडली, डिजिटल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यूथ सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है डिजिटल मीडिया पे, एंड यूथ जो है वो कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं P2P, लाइक पीपल टू पीपल। लेट्स से पाकिस्तान के अंदर जितने भी यूथ में क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्लोबल नॉर्थ के क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स के साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। उसके साथ जो वो क्लाइमेट स्मार्ट कोई भी सोल्यूशन बिल्डअप करते हैं, वो पाकिस्तान में वो बता सकते हैं कि ग्लोबली ये वाले क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशंस जो है वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं, दैट वी कैन रेप्लिकेट इट इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर
मोस्टली जो रूरल एरियाज़ जिनको हम बहुत इग्नोर कर देते हैं, रूरल एरियाज़ में बहुत से इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो हैं वो जनरेट हो रहे होते हैं। तो हम लोग उन सॉल्यूशंस को इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं। सो यूथ इज़ इनोवेटर एंड यूथ इज़ प्रैक्टिशनर एंड दे आर फ्यूचर लीडर्स, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि दे आर करंट लीडर्स एंड दे आर इमर्जिंग लीडर्स। तो यूथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टूवर्ड्स क्लाइमेट स्मार्ट एक्शंस। Technology can play a vital role in tackling this climate change crisis. अगर हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, या हम अगर ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं, या हम सेटेलाइट मॉनिटरिंग की बात करते हैं, सो वी कैन इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी टू प्रिडिक्ट फ्लड्स, स्ट्रॉम एंड हैवी रेनफॉल इवेंट्स। तो आप क्या समझती है, हाउ वी आर इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजीज in climate smart solution? Yes, definitely. Inclusivity of technology and smart solution is really important. हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं वो प्रिडिक्शन के लिए या फोरकास्ट के लिए उनके पास सेंट्रलाइज सिस्टम है। ग्राउंड बेस्ड मॉनिटरिंग के लिए भी, सेटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग के लिए भी वी हैव डिपार्टमेंट्स देयर। लेकिन उन डिपार्टमेंट्स के साथ साथ हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है while they are digitizing all these predictions and solutions. क्योंकि अगर फार्मर जो है वो वेल अवेयर होगा ऑलरेडी किसी भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट से, तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो एड्स लेगा, स्टेप्स जो है वो अडॉप्ट करेगा। तो अभी गवर्नमेंट का एक विजन ये भी है कि वो डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और प्रिडिक्शंस के लिए आई गेस जो सेटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इवन मैं पॉलिसीज़ को बढ़ती रही हूँ, मैं उन पर क्रिटिक भी करती रही हूँ, तो आई हैव सीन दैट कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपनी पॉलिसी और प्लानिंग में ये चीज़ मेंशन की हुई है कि वी हैव प्लान्स फॉर दी GIS एंड वी हैव प्लान फॉर दी SCADA, इस तरह की जो डिजिटल सिस्टम हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में। बट राइट नाउ वी डोंट हैव राइट ब्रेन्स एंड राइट टेक्निकल एक्सपर्टीज़ समहाउ। तो हम लोग जो अपनी अपकमिंग यूथ है उसको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के थ्रू, और जो हमारे बिजनेसेस हैं वो अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के थ्रू गवर्नमेंट के साथ भी काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कराने में दे कैन ऑल्सो टेक अ बिग रोल इन इट। तो डेफिनेटली जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनोवेशन है और डिजिटाइजेशन है, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर द फ्यूचर। जब हम टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, हम लोग फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं, पॉलिसीज़ की बात करते हैं, लाइक इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर, अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो इन सब के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की एक टर्म यूज़ होती है कि जब आपके पास फंड्स होंगे, आपके पास रिसोर्सेज होंगे, देन यू कैन यूज़ टेक्नोलॉजीज़, देन यू कैन डेवलप फ्रेमवर्क्स। तो क्या समझती है आपके पाकिस्तान इस वक्त क्या मुश्किलात फेस कर रहा है क्लाइमेट फाइनेंस? क्लाइमेट फाइनेंस के काफ़ी स्कीम्स जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी और दूसरे हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने अपनी स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की हुई हैं, एंड जो हमारे प्रोज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो उसको ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं। सरी तरक्याती बैंक लिमिटेड, आपने अभी एग्रीकल्चर की बात की, ZTBL प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। काफ़ी दूसरे बैंक्स हैं उन्होंने भी अपनी स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की अपनी स्कीम्स भी होती हैं, पंजाब गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की, जो पर्टिकुलरली कुछ SMEs के लिए होती हैं या पर्टिकुलर सेक्टर के लिए होती हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हैं। तो जो फाइनेंसिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप पर्टिकुलरली उन प्रैक्टिशनर्स के लिए जो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी अफोर्डेबिलिटी उस तरह से नहीं होती, दे कैन अवेल दोज लोन्स। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि हम उसके ऊपर जब मार्कअप रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है वो चीज़ अवेल करना। लेट्स से इनिशियली अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्कीम थी, एक SBPR स्कीम, उसको इनिशियली जब लॉन्च किया गया तो उस पर 6% में मार्कअप रेट था, बट लेटर ऑन जो काइबोर था वो 20 to 22% पे चला गया। तो जो इनिशियली जिन्होंने वो स्कीम को अडॉप्ट किया, अवेल किया, उनके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल था, बट लेटर ऑन
उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो जैसे जैसे स्ट्रिंजेंट होती गई तो उसको अवेल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया. तो आई गेस हमारे पास कंसेशनरी लोन्स होने चाहिए उनके लिए. उसके अलावा कार्बन मार्केट्स का एक कॉन्सेप्ट है. अगर आप कोई भी क्लाइमेट स्मार्ट एक्शन को अडॉप्ट करते हैं तो आप अपने क्रेडिट्स जो हैं वो बाय और सेल कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में. वेयर आई हैव गोल्ड स्टैंडर्ड, देयर आर लॉट ऑफ अदर कार्बन क्रेडिट के लिए कार्बन मार्केट्स में. अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने अपना फ्रेमवर्क भी डेवलप किया. तो आप अगर कोई भी स्मॉल स्केल पे अपना कोई बिजनेस करते हैं जो क्लाइमेट स्मार्ट है और आप उसमें एमिशन को अवॉइड कर रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन टू दैट मार्केट एज वेल. तो यहाँ पे जस्ट एक आपके पास एक सोल्यूशन ये है कि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से फाइनेंस जो है वो हंट करें. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आप अपना जब प्रोजेक्ट बना लेते हैं एंड दैट इज़ क्लाइमेट स्मार्ट प्रोजेक्ट तो आप उसके ऊपर आपको एज अ रिवॉर्ड यू कैन बाय एंड सेल क्रेडिट्स एज वेल. सो इसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है. आपका प्रोजेक्ट काफ़ी मैकेबल बन जाता है. Okay, so now we are moving to our last segment, that is rapid fire segment. So are you ready? Yeah, I'm excited too. So climate hero, It might be me. one technology Pakistan needs badly. Satellite formation, I must say. A city you think most vulnerable here in Pakistan. Oh, there are a lot of cities, but I can say Gilgit. Youth or government, who plays the bigger role? Both are very important, I guess. Solar, wind or hydro, your favorite renewable energy. Oh, mine is wind, definitely, along the coast. Thank you so much, Kurutalen, for coming. It was a very nice conversation with you, and I hope you will come again and again. Thank you for having me, and that was really incredible conversation. So ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट. आई होप कि आप सबके लिए भी उतनी ही इन्फॉर्मेटिव थी जितनी मेरे लिए. Stay tuned for another episode by AIGO Navigators.